Yeah. So today, as I already discussed, I'll discuss some of the important interview questions which were asked from me when I was an interviewee in different institutes. Okay. So first, I'll start with the interview questions which were asked from me in Tiffer Bombay interview. Okay. I wish I could write. You have a notebook and pen with you, no? Palak, what are you trying to do? Okay, I'm writing a question. It was, a lab maths question. You try to solve it and give me answer. Okay, or else I will solve. How will you make? A bad handwriting I am having. How will you make 100 ml 0.1 molar NaCl from 0.1 molar NaCl? What physical process are you employing? Okay, solve it if you can. Of course you can. It's a very easy question. So basically आपको करना क्या है? आपको आपके पास 0.1 मोलार NaCl का स्टॉक है और आपको ओह सॉरी आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ना हाँ, 10 मोलार NaCl का स्टॉक है और आपको 0.1 मोलार NaCl बनाना है और 100 ml बनाना है. तो कैसे करोगे आप इसे? मोलैरिटी इक्वेशन यूज करोगे. स्टॉक वर्किंग M1V1 इज इक्वल टू M2V2. आई मीन कितना स्टॉक का वॉल्यूम डालो जिससे कि फाइनल मोलैरिटी 0.1 हो जाए, राइट? सो V1 कितना आएगा? M2V2 अपॉन M1. M2 इज व्हाट? वर्किंग कितना चाहिए? 0.1 इनटू वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम कितना चाहिए? 100. M1 इज व्हाट? स्टॉक का कितना है? 10. 1 ml. सो क्या करना पड़ेगा आपको? एक बीकर में 1 ml 10 मोलार NaCl डालना है. उसके बाद उसका वॉल्यूम मेकअप कर देना है विद डिस्टिल्ड वाटर अप टू 100 ml. यू गॉट इट? एम आई ऑडिबल? Yes, you are. Okay. So the next question was in the similar way. I'm just changing the statements.
Now do it. Is someone trying to do or not? यहाँ पे भी सिमुलैरिटी इक्वेशन ही यूज करनी है. दिस इज स्टॉक, दिस इज वर्किंग. स्टॉक क्या है आपके पास? 0.1 मोलार NaCl. 0.1 इंटू V1 इज इक्वल टू सेकेंड की क्या है, वर्किंग की 0.2, वॉल्यूम 2, आई मीन बनाना कितना है आपको, 2 ml बनाना है. सो वॉल्यूम 1 विल बी 0.1 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1, so it will be like 4 ml. Yes, first of all you have to take 4 ml of this 0.1 molar NaCl. Then you have to evaporate the excess water. So the water will be evaporated. You have to make the volume to half, means the 4 ml you have to shrunk it to 2 ml, so that the concentration of the mixture will change from 0.1 molar to 0.2 molar. You got it? So which physical process you are employing? Evaporation. You got it? Please give me some response. Okay, okay, Can you please repeat? okay. Here they ask that how will you make 2 ml of 0.2 molar NaCl solution. You are given a stock of 0.1 molar. आपको स्टॉक दे दिया है 0.1 मोलार NaCl का, और आपको उससे 0.2 मोलार NaCl बनाना है 2 ml. यूजुअली हम क्या करते हैं, डिल्यूट करते हैं. आई मीन हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक होता है, उसमें पानी डाल के अपनी जरूरत के हिसाब से हम उसे डिल्यूट करके बना लेते हैं. लेकिन हेयर द केस इज उल्टा. Here they have given us diluted solution 0.1 molar concentration. अब हमें उससे 0.2 मोलार बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? वही जो कैलकुलेट कर लिया, 4 ml आया, मीन्स हमें स्टॉक लेना है 4 ml और उसे गर्म करके उसका पानी निकालना है, आई मीन इवेपोरेट कर देना है वाटर. तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, पानी जब आधा रह जाएगा तो आपका सॉल्ट तो उतना ही रहेगा ना, 4 मोल से बचे रहेंगे, आई मीन जितने भी हो जाए, हैव टू कैलकुलेट एनीवेज. तो हाफ हो जाएगी जब वॉल्यूम, तो आपका 2 ml बन जाएगा 0.2 मोलार NaCl. होप यू गॉट इट. Yes, yes. ओके. Anyone wants to ask something? You can ask. Don't hesitate to ask. So the next question is that I'm just dictating the question now. An alien species is found. Okay. All parental organisms, when crossed, they produce pigmented plants. But when they are they have undergone reciprocal cross, half of the progeny is pigmented. Demonstrate this observation. Should I repeat the question or is it fine? Can you repeat? An alien species of plant is found. Okay.
All the parental organisms are pigmented. When how to write SOP next? I'll give answers to these your doubts and all questions at the end. Okay. So first I'm discussing some of the important interview questions. So I was at the question, an alien species is found. All parental organisms, when crossed, they produce pigmented plants. But on reciprocal cross, half of the progeny is pigmented. Means half is colorless. Demonstrate this observation. What could be the reason? You got the question or should I write? Okay, I'm writing. दी लास्ट में क्या था वो रिपीट करना। देखो हुआ क्या है कि एक एलियन प्लांट की स्पीशीज है वो हमें मिली है। ठीक है। जितने भी उसके पेरेंटल प्लांट्स है ना, ऑल पेरेंटल ऑल पेरेंटल प्लांट्स आर पिगमेंटेड, मतलब सब कलरफुल है। ठीक है। अब हुआ क्या है, व्हेन दे आर क्रॉस्ड, जब उनकी क्रॉसिंग की, सो प्रोजनी इज पिगमेंटेड। बट जब रेसिप्रोकल क्रॉस किया, यू नो व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस? अरे भाई नहीं पता तो बता दो, मैं बोल बता दूंगी। हाफ ऑफ द प्रोजनी, कोई है मीटिंग में या सब चले गए या नींद आ रही है तुम्हें? यस हाफ ऑफ भी द पता है। प्रोजनी इज पिगमेंटेड। डेमोन्स्ट्रेट द ऑब्जर्वेशन। अब क्यों है ऐसे, आपको अपनी हाइपोथेसिस देनी है। आई थिंक आई शुड टाइप। किसी की कोई राय इस पे? एलियन दी प्लांट। जैसे हाँ बोलो बोलो। जैसे रिसेसिव एलील्स जो है पहले तो मींस अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे तो होंगे, तो वो पिगमेंटेड ही शो करेंगे। बट अगर रिसेसिव एलील जो है होमोजाइगस कंडीशन में, जैसे हाँ। होमोजाइगस कंडीशन में आ गए तो उनका एक्सप्रेशन हो गया। होमोजाइगस कंडीशन में कैसे आ गए? रेसिप्रोकल क्रॉस। मतलब जब रेसिप्रोकल क्रॉस किया तो क्रॉस करने पे जैसे उन्होंने बोला ना कि F1 प्रोजेनी जब आई तो वो सारे पिगमेंटेड थे, तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के जो प्रोजेनी है अगर उनको आगे रेसिप्रोकल क्रॉस किया तो हो सकता है ना कि मीन्स एक पेरेंटल से एक रिसेसिव एलील आया और दूसरे पेरेंट से दूसरा रिसेसिव एलील आया और प्रोजेनी में होमोजाइगस रिसेसिव। हाँ बट अगर ऐसे हुआ होता तो जो पेरेंट्स हैं वो पिगमेंटेड हैं। मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो पेरेंट्स हैं वो भी तुम ये कह रहे हो कि जो पेरेंट्स हैं वो भी हेट्रोजाइगोट्स थे, तो फिर F1 प्रोजनी में भी कुछ मिलना चाहिए था। मतलब जो जो पहले। F1 प्रोजेनी है वो हेट्रोजाइगस होगी ना। प्रोजेनी तो जैसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी देखते हैं कि जैसे टॉल 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 और ड्वार्फ जो है वो तो पेरेंट्स तो होमोजाइगस डोमिनेंट ही है।
ठीक है, उनका जब क्रॉस किया तो F1 प्रोजेनी में हमें सिर्फ टॉल देखने को मिलते हैं, डवार्फ नहीं देखने को मिलते हैं। तो उनका आगे फिर क्रॉस करते हैं तो हमें दोनों ही देखने को मिलते हैं, टॉल भी और डवार्फ भी, क्योंकि वो रिसेसिव कंडीशन है जो F1 प्रोजेनी में एक्सप्रेस नहीं हुई थी, वो F2 प्रोजेनी में एक्सप्रेस हो गई थी। आई गॉट योर पॉइंट, बट द थिंग इज, ये यहाँ पे जो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, हम मेंडल के क्रॉस में करते हैं, तो क्या होता है, दोनों पेरेंट्स का फिनोटाइप अलग होता है। एक पेरेंट होता है टॉल, एक ड्वार्फ। और अगर यहाँ पे मुझे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना होगा तो हमें पेरेंट्स को प्योर ब्रीडिंग लाइंस कंसिडर करना पड़ेगा, तो दोनों का फिनोटाइप अलग होना चाहिए, इजंट इट? Yes, हम्म। क्योंकि वहां पे एक टॉल था, एक ड्वार्फ था, तभी हमें हेट्रोजाइगस टॉल मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं ये भी मान लूं कि पेरेंट्स हेट्रोजाइगस पिगमेंटेड हैं, तो प्रोजनी में, पूरी प्रोजनी एनालाइज की पहले, तो पूरी की पूरी प्रोजनी पिगमेंटेड दिख रही है हमें, इजंट इट? तो कुछ ओके जी, गॉट इट। तो होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए था ना, कुछ तो दिखना चाहिए था कलरलेस पहले। अचानक से क्यों अब रेसिप्रोकल क्रॉस करने पे प्रोजनी आधी पिगमेंटेड दिख रही है और आधी हमें कलरलेस दिख रही है? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या है? जेंडर्स चेंज किए ना हमने। मतलब जिस प्लांट को पहले हम फीमेल प्लांट की तरह कंसिडर कर रहे थे, उसे अब हम मेल प्लांट की तरह कंसिडर कर रहे हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट है। पहले मैं जिस जिस प्लांट के स्टेमन्स ले रही थी, स्टेमन यूज कर रही थी, या पोलन बोल लो, अब मैं उस प्लांट की ओवरी यूज करूंगी। ओके। सो आपने ये नाम सुना है, मैटरनल इनहेरिटेंस? यस जी। हाँ, तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस से लिंक्ड है। पहले हम ओवरी जिस प्लांट की यूज कर रहे थे, वो हमें क्या दिख रही थी, मतलब वो जो थी वो पूरी की पूरी उसमें पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म था, तो इसलिए सारे के सारी प्रोजनी हमें पिगमेंटेड मिल रही थी। लेकिन अब जो मैं रेसिप्रोकल क्रॉस कर रही हूँ, तो जो मेरा प्लांट है, वो, उसमें जो माइटोकॉन आई मीन क्लोरोप्लास्टिड्स होते हैं ना, वो आधे ग्रीन है और आधे वाइट है। तो इसीलिए हमें जो प्रोजनी है आधी कलरफुल मिल रही है, आधी हमें पिगमेंटेड मिल रही है। यू गॉट इट ना? जी, गॉट इट। हाँ। यस जी। इवन इफ, क्योंकि हमें वो ऐसी प्रोजनी भी मिलेगी, ऐसे प्लांट्स भी मिलेंगे जहाँ पे आधा मिक्स होगा, जैसे आधे प्लास्टिड्स ग्रीन होंगे, आधे वाइट होंगे। वेरी गुड। लेकिन वो होगी तो पिगमेंटेड ही ना, पिगमेंट का लेवल चाहे कम है चाहे ज्यादा, होगी तो पिगमेंटेड ही ना, काउंट वो पिगमेंटेड में ही होगी। ठीक है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन चेंज करके हाफ की जगह वन थर्ड भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये तो चांस इवेंट था कि हमें हाफ प्रोजनी कलरलेस मिली और हाफ पिगमेंटेड, हमें किसी भी रेशो में मिल सकती थी। यू गॉट इट नो? वन ऑफ द रीजन हो सकता है, अगर आप इसके अलावा कोई और रीजन सोच सकते हो तो आप सोचना। ठीक है। ओके जी। हाँ। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने आगे यही पूछा कि सपोज दिस कलर प्रोडक्शन इज ड्यू टू एन एंजाइम। यार मेरे को टेक्स्ट बॉक्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे, किसी को टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है? मैं टाइप कर देती हूँ क्वेश्चन, मेरी हैंडराइटिंग काफी गंदी है। आई मीन इस पेन टैप पे गंदी हो रही है, पता नहीं क्यों। जी, आप रिपीट ही कर दो। ठीक है, मैं क्वेश्चन ऐसे बोल देती हूँ, सपोज कर लो दिस कलर प्रोडक्शन इज ड्यू टू एन एंजाइम। चलिए, ओके, कि ये जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट में, ये किसी एंजाइम की वजह से है। व्हाट विल हैपन इफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ? हाँ, सेम रीजन होगा, मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है। चलो अब बताओ, अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए तो एंजाइम
कलर प्रोडक्शन पे क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए? माइकलिस मेंटन यूज होनी है, हिंट दे दिया। किसी का सॉल्व हुआ? नोट्स खोल लो भाई, नोट्स खोल लो फिलहाल के लिए, अगर नहीं याद आ रहा कुछ तो। अगर किसी ने किया है तो वीडियो ऑन करके दिखाओ क्या किया है। देखो इंटरेक्टिव सेशंस का कोई फायदा नहीं है अगर आपको बोलना ही नहीं है तो। फिर इससे अच्छा तो जब मुझे टाइम मिले मैं सीधा यूट्यूब पे डाल दूं बना के, क्योंकि देखना ही है आपने तो। हम्म। भाई मैं ऑडिबल भी हूँ। दी लास्ट लाइन आपने क्या बोली, व्हाट विल हैपन व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल हाफ, यहाँ तक ही है क्वेश्चन? हाँ, मतलब कलर प्रोडक्शन क्यों हो रही है, किसी प्रोडक्ट की वजह से? यस। वैसे आपको क्वेश्चन इंटरप्रेट करना आना चाहिए। माइकलिस मेंटन इक्वेशन ही बोल दो। V naught is equal to V max S divided by Km plus S. हम्म। केएम चेंज हो रहा है एंजाइम का? अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाफ हो रही है तो एंजाइम का केएम चेंज हो रहा है। केएम क्या डिफाइन करता है? सा- एफिनिटी। एफिनिटी चेंज हो रही है एंजाइम की? नहीं हो रही। Yes, एफिनिटी कहाँ चेंज हो रही है भाई? एंजाइम का स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हो रहा है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बस हाफ हो रही है। केएम नहीं चेंज होगा। हाँ एफिनिटी सेम है, बिल्कुल। भाई बताओ क्या होगा? कलर प्रोडक्शन भी सेम ही रहना चाहिए। नहीं, कलर प्रोडक्शन सेम क्यों रहेगा? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रही है ना। जनरल माइकलिस मेंटन, उसकी इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिख के एस की जगह S/2 डालो, फिर बताओ क्या आंसर आ रहा है। थ्योरेटिकली उसकी एफिनिटी चेंज नहीं हो रही है, तो थ्योरेटिकली उसका केएम चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर रही हूँ, तो मेरा अपरेंट केएम चेंज होगा। पता है ना डिफरेंस अपरेंट केएम और थ्योरेटिकल सब? होपफुली पता है, अगर नहीं भी पता तो पूछ सकते हो। माइकलिस मेंटन यूज कर रही है। पता नहीं हो गया मेरे का। थ्योरेटिकली मीन्स कि
अब हम जैसे बता रहे हैं कि अफिनिटी चेंज नहीं होनी चाहिए एंजाइम की, तो थेरेटिकली केएम चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे अभी। और वहां पे पता है आपको सिर्फ 10 मिनट में ये सब करना है। ये अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस ये सब 10 मिनट में हो गया था। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ करने की अपना, ठीक है। ये था थोरेटिकली, आई मीन पहले। अब जैसे मैंने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दी, न्यू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज S/2। थ्योरेटिकली केएम चेंज नहीं होना चाहिए, कलर प्रोडक्शन सेम रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली क्या होगा, S/2। अपरेंटली क्या होगा, यहाँ पे पुट करते हैं वी मैक्स, एस की जगह S/2 आ जाएगा ना, केएम प्लस S/2 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो ये 2 यहाँ जाएगा, 2 से 2 कटिंग हो जाएगी। तो मेरा अपरेंट V0 मतलब वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड आ जाएगी वी मैक्स इंटू एस है, ठीक है ये 2 km प्लस एस। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसे कंपेयर करूं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सारा अगर मैं इसे कंपेयर करूं, तो क्या आ रहा है मेरे पास, km मुझे क्या दिख रहा है, बड़ा हुआ दिख रहा है ना। km जितना कम एफिनिटी उतनी ज्यादा। अब km बढ़ गया है तो एफिनिटी, मतलब अपरेंट एफिनिटी हमें क्या दिखेगी, कम हुई दिखेगी। मींस अगर एफिनिटी कम है एंजाइम की, तो उतना सबस्ट्रेट को प्रोसेस कर पाएगा, उतना प्रोडक्ट प्रोडक्शन कम होगा, तो उतना ही कलर प्रोडक्शन भी कम होगा, बिल्कुल अरीबा। सो क्या होना चाहिए कलर प्रोडक्शन, बाय अ फैक्टर ऑफ 2 कम हो जाना चाहिए, मतलब 1/2 कम हो जाना चाहिए वो प्रोडक्ट भी। यू गॉट इट नो। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हम्म। क्लियर है। ओके। चलो उसके बाद उन्होंने बोला था plot a Michaelis Menten curve for it and show the Km value on it। माइकलिस मेंटन, अब 10-10 मिनट रह गए हैं, जल्दी से माइकलिस मेंटन कर्व बना दो भाई, इसके बाद मुझे पढ़ना भी है। जल्दी जल्दी बना दो माइकलिस मेंटन कर्व। जल्दी बताओ एक्स और वाई पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट, नहीं 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 नहीं, वो लाइन वीवर वर्क प्लॉट है, वो नहीं बताना, माइकलिस मेंटन बताना है। अरे वो सब भी होता है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वो सब भी याद कर लेना अच्छे से। मुझे अपना टाइम याद आ रहा है कैसे मैं पढ़ती होती थी। 1 मिनट में लैपटॉप को चार्ज लगा दूं।
बना नहीं आ रहा अभी तुमसे? बन गया दी। क्या क्या होता है यहाँ पे? दी वाई साइड पे वी मैक्स और एक्स पे के एम। बीमैक्स होता है या ऑब्जर्व वेलोसिटी होती है? ऑब्जर्व मीन्स वी नॉट। हाँ, बी नॉट। हाँ, एक्सप्रेस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब क्या करूँ? वाई एक्सिस पे यहाँ पे पहुंचता है वीमैक्स पे, और थ्योरेटिकली सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जीरो होनी चाहिए। बाद में भी जीरो हो जाती है ना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। थ्योरेटिकली तो ऐसा बेल शेप्ड आता है ग्राफ, लेकिन कभी भी इतना पहुंच नहीं पाता है। तो कैसा आता है? इस टाइप का ना, सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि एंजाइम की सारी साइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं। ये तो हुआ नॉर्मल कंट्रोल कंडीशन का। अब हमने क्या किया, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दी। ये मेरी मैक्सिमम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन थी ना। अच्छा, इस केस में केएम क्या आता? सेम आता ना। अब यहाँ पे वी मैक्स कम हो गया, तो ऐसे आ जाएगा ग्राफ। केएम सब सेम रहेगा ना? दी के एम डबल नहीं हुआ है। वी मैक्स तो नहीं किया हमने, के एम की वैल्यू डबल हुई ना तो वो नीचे नहीं आएगा ग्राफ। मतलब थ्योरेटिकली वैसे ही आना चाहिए। नहीं, जैसे हमने अपरेंट अपरेंट वैसे ही आना ऊपर चाहिए। सॉल्व किया था। देखो प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मीन्स अपरेंट, है ना? अपरेंट हमें दिख रहा है कि वो कम हुआ है, लेकिन क्या अफिनिटी चेंज हुई है? एंजाइम नो। अफिनिटी कब चेंज होती है? जब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके कुछ कॉन्फर्मेशन में चेंजेस हो। तो वो तो चेंज ही नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो केएम सेम ही रहना है, केएम सेम रहेगा। जब तुम, जैसे तुम बोल रहे हो ना, मैंने भी ऐसे ही बना के दिखाया था कि केएम हाफ हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि इन अफिनिटी कब चेंज होगी? जब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, आई मीन जब एंजाइम की एक्टिव साइट की कॉन्फर्मेशन चेंज होगी। तो वो तो चेंज ही नहीं हो रही, तो इसलिए अफिनिटी चेंज नहीं होगी। ऐसे आ जाएगा वो ग्राफ। समझे? मैंने भी ऐसे बनाया था यहाँ पे कि केएम केएम थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने मुझे करेक्ट किया। ओके दी। हम्म। थ्योरेटिकली वैसे ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सो बस आज के लिए इतना ही है। आपको अब कोई डाउट है तो आप पूछ लो वो। मैं क्वेश्चंस देख रही थी, और कुछ मैं 5 क्वेश्चन या 3 4 क्वेश्चन मैं भेज दूंगी कल दोपहर में, या जब मेरे को टाइम मिलेगा। तो वो फिर आप सॉल्व करके कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? एनी अदर ओके कंसर्न्स दी। एंड डाउट्स? कोई कुछ पूछ रहा था? एसओपी बता दो, फॉर्म में कैसे फिल करना है। एसओपी में देखो ऐसे होता है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट क्या है। तो उसमें आपको बस अपने इंटरेस्ट बताने हैं। जैसे आपको बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बायोकेमिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली किस में इंटरेस्ट है, एजिंग में इंटरेस्ट है, तो फिर उसके बाद आपको बताना है कुछ भी एक चीज पकड़ लो। माइटोकॉन्ड्रिया पकड़ लिया, लेट अस सपोज कि उसमें आरओएस प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वो ऐसे ऐसे प्रोटीन्स एमआरएनए सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे कि जो सेल है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, सीनेसेंट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उस एक सीनेसेंट सेल कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है, जिससे बाकी सारे नेबरिंग सेल्स भी सीनेसेंट होने लगते हैं, फिर ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है, जिससे कि बंदा एज हो जाता है। तो आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, आप माइटोकॉन्ड्रिया के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स को समझना चाहते हो कि कौन कौन से एंजाइम उसमें और वर्क करते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर्स देखना चाहते हो जिनको कि आप अगर किसी तरह से कंट्रोल कर लो, जिससे कि आरओएस प्रोडक्शन कम हो जाए। आरओएस प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो जितना आगे कैवियाट हो रहा है वो सब नहीं होगा।
तो एजिंग को आप कंट्रोल कर लोगे। ऐसे बता दो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पकड़ लो, जैसे कि बिस्फिनॉल ए ले लिया, या कोई भी इस एनाइड, हाँ, कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, और आप उस पे उस बता दो, उसका लिंक देख लो कि आरओएस प्रोडक्शन पे कोई उसका इफेक्ट हो रहा है या नहीं, या टीलोमियर लेंथ पे देख लो कि अल्टीमेटली वो एजिंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे आप उसको लैब में स्टडी करोगे, ऑर्गेनॉइड्स लोगे, उसको ग्रो करोगे, क्या क्या वो सारे प्रोसीजर्स लिख दो। सो एसओपी में आपको बस अपना इंटरेस्ट बताना है जिस हिसाब से उन्होंने पूछा है। अब मेरे से और डी एनआईटी इज बेटर और आइसर, रिसर्च में जाना है तो आइसर, एमएससी करनी है तो एनआईटी। वैसे सब इंस्टीट्यूट बढ़िया है, जहाँ मिल रहा है ले लो, अच्छे इंस्टीट्यूट है सब। हॉर्मोन्स पर क्या बोल सकते हैं, मतलब रिलीज और इनहिबिशन, कौन से हॉर्मोन्स भाई, स्पेसिफाई कर लो, कोई कौन से हॉर्मोन्स की बात कर रहे हो। एक तो मतलब हॉर्मोन्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स। हाँ देख लो, ग्रोथ हार्मोन का जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, तो प्यूबर्टी के बाद उसका रीजनरेशन में रोल होता है, उसको भी आप एजिंग से लिंक कर सकते हो। कि अगर हम क्या बोलते हैं उसको, सर्काडियम रिदम रिदम पे देख सकते हो आप, कि अगर हम रात को नहीं सोते हैं टाइम पे, क्योंकि यूजुअली 12 बजे पूरी लाइट वाइट बंद करके सो जाना चाहिए, क्योंकि डार्कनेस में ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, अगर हम नहीं सो रहे हैं टाइम पे। हाँ, तो अगर हम नहीं सो रहे हैं तो उससे पूरा साइकिल हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं होता, और उसके इंस्टेड कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, तो वो कहीं ना कहीं एजिंग को एक्सेलरेट करता है। तो मतलब इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, तो मैं इससे रिलेटेड फील्ड में काम करना चाहती हूँ। कैन राइट। एनी अदर कंसर्न्स और डाउट्स। जी किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हो सकता है हाँ, टॉपिक। वट एवर इंटरेस्ट यू द मोस्ट। और बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता कि जो आपने एसओपी में लिखा उसमें ही काम करना है, एटलीस्ट यहाँ एमएससी में तो। फॉरेन के लिए अगर आप लिखते हो तो शायद नहीं लगता, हाँ उसी पे कुछ कुछ रिलेटेड चीजों में ही करना होता है। इवन टिफर में भी एसओपी जो लिखते हैं हम, तो उसमें भी वो कोशिश करते हैं कि आपके इंटरेस्ट की मैक्सिमम ओवरलैपिंग लैब आपको मिले। मुझे एंडोक्राइनोलॉजी में रिसर्च में इंटरेस्ट है, हाँ तो कुछ भी एक पर्टिकुलर हार्मोन देख लो, कुछ उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन से थोड़ा बहुत लिंक करके लिख दो, और अवॉइड करना कैंसर पे लिखने का। जी कैंसर में मैंने टिप्पर में रिकॉम्बिनेंट बस प्रोटीन पे कैंसर लिखा पे था। थोड़ा अवॉइड करना,